बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantorpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 8 and it's our lecture 4 from the third chapter, that is about biotechnology. In this lecture we are going to study the biotechnological products we frequently used in our daily life. Moreover, we will also study that how genetic modification help us in nutritional improvements. The SLO that will be achieved through this lecture are: list some bacterial technological products used in daily life, and the other one is explain that genetic modification in different foods can increase the amounts of essential nutrients. First of all, we will discuss the products we use in daily life. We find the sport from our textbook at page 36 under the heading of biotechnological products used in daily life. It's our topic 3.6. There are many products we used in our daily life, and the interesting thing is we do not know that it is the benefit of biotechnology. But or as a science student, you must know about this, that which product have been changed genetically. Biotechnology has a very vast canvas. It covers almost over all fields. The major fields that use biotechnological products are baking and brewing industry, genetically modified food, crops and animals, pharmaceutical industry, chemical industry. When we talk about the baking and brewing industry, the biotechnological products here are bread. Bread, as you all know, is made by the use of yeast, and the use of yeast or the other microorganisms makes a bread are biotechnological products. Moreover, curd is also made from milk by using yeast or some bacteria. Cheese, vinegar, pasteurized food मतलब canned food, it is also preserved by the use of some bacteria that make food durable or usable for many days. Fermented wines, pickle is also a product of biotechnology. Bacteria are used and yeast is used to preserve food. Next is the genetically modified food, crops and animals. There are many crops and animals we have altered their genetic makeup for our benefits. We have inculcated many traits just as more crop production, lesser time of breeding, etc. These crops and animals include alfalfa, cotton, corn, canola, sugar beet, soybeans, आर्कटिक एप्पल्स ग्रीन कलर के एप्पल्स हैं जो अक्सर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, पोटैटोज, डक एग्स, सैल्मन फिश। ये वो तमाम क्रॉप्स और एनिमल्स हैं जिनके जेनेटिक मेकअप को हमने अपनी मर्जी से चेंज कर लिया अपने डिज़ायर्ड बेनिफिट हासिल करने के लिए। जैसे सैल्मन फिश या डक एग्स को में न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ कर दी गई है। बाकी की क्रॉप्स, कॉटन क्रॉप, कॉर्न, कैनोला, इनको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया गया है। इनसे ज़्यादा पर हेक्टर ज़्यादा क्रॉप, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा यील्ड हासिल करने के लिए इन्हें मॉडिफाई कर दिया गया है। सोयाबीन, शुगर बीट वगैरह में से हमने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए इन्हें मॉडिफाई कर दिया गया है। तो हर किस्म के टाइप को, ये जितनी भी आपने क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, इनमें से हर किसी को किसी ना किसी बेनिफिट के लिए, डिज़ायर्ड पर्पस के लिए इनके जेनेटिक मेकअप को ऑल्टर कर दिया गया है, यानी अपनी मर्जी के जीन्स इनमें शामिल करके डिज़ायर्ड बेनिफिट हासिल किया गया है। किसी से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हासिल किए गए हैं, किसी से ज़्यादा गोश्त की पैदावार हासिल की गई है, किसी से इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट्स हासिल की गई हैं, किसी का ब्रीडिंग टाइम या ग्रोथ टाइम कम कर दिया गया है। सो किसी न किसी हवाले से इनको मॉडिफाई किया गया है। फिर जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, यानी मेडिसिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें वैक्सीन की एक बहुत बड़ी रेंज मिलती है जो कि बायोटेक्नोलॉजिकली जब बनाई गई हैं।
वैक्सीन जैसा कि पोलियो के लिए, मम्स के लिए, मीजल्स के लिए, ये वो डिजीज़ थी जो वैक्सीन्स के बगैर इनक्योरेबल थी। लेकिन थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी नाउ वी हैव क्योर फॉर दीज डिजीज़। वैक्सीन्स भी बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस की जाती हैं। कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन एक एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल पेनिसिलिन है। इसके अलावा बहुत से हार्मोन्स बायोटेक्नोलॉजिकली बनाए गए हैं। इनमें सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंसुलिन है। फिर बायोथेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स हैं। अब बायोथेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स कौन सी होती है? थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हीलिंग पर्पज़ के लिए, कोई भी ड्रग है, कोई भी केमिकल है, कोई भी सब्सटेंस है जिसे हीलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, उसे थेराप्यूटिक कहते हैं। और बायोथेराप्यूटिक का मतलब है कि उस हीलिंग सब्सटेंस का या क्योर्स करने वाले सब्सटेंस का कोई लिविंग ओरिजिन हो, यानी उसे किसी ना किसी लिविंग तरीके से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक किसी तरीके से बनाया जाए। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट लेके उसको मैन्युफैक्चर किया जाए या लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से उसे मैन्युफैक्चर किया जाए। ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स जो हीलिंग पर्पज़ के लिए बनाए जाएँ और उनका कोई ना कोई लिविंग ओरिजिन हो, बायोथेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। इनमें सबसे पहले और सबसे अहम ग्रोथ प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे बहुत सी मेडिसिन है जो हमारी ह्यूमन ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, हिंडर्ड ग्रोथ को रिस्टोर करती हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस की जाती हैं। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें बहुत से केमिकल्स हम बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस करते हैं। अब बेनिफिट ये है कि बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस किए गए केमिकल्स का कि ये पोल्यूशन बहुत कम पैदा करते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग आसान है। इनमें सबसे पहले एसीटोन है, ब्यूटानॉल एक केमिकल है, फिर बायोस्टील है, बायोस्टील एक एनर्जी बूस्टर है, बायोगैस, बायोहाइड्रोजन, ये वो तमाम केमिकल हैं कि अगर इन्हें हम बायोलॉजिकल ओरिजिन से मैन्युफैक्चर करें तो ये पोल्यूशन फ्री हो जाते हैं, हमारी इन्वायरमेंट के लिए इतना ख़तरा नहीं रहते। अब हम देखें, ये तो वो लिस्ट थी जो ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। अब हम आते हैं दो स्पेसिफिक किस्म के प्रोडक्ट्स की तरफ, वैक्सीन्स और इंसुलिन, और देखते हैं कि क्या ये बायोटेक्नोलॉजिकली कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। प्रिंसिपल इसका वही है जो हमने जीन इंट्रोडक्शन के लेक्चर में सीखा था कि एक जीन कैसे एक ऑर्गेनिज्म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में इनकलकेट की जाती है और वहाँ से इसकी प्रोडक्शन हासिल की जाती है। इंसुलिन आप सब जानते हैं कि एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज रिलीज़ करता है। पेंक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब पेंक्रियाज का इस हार्मोन का काम ये है कि ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर किसी वजह से पेंक्रियाज ये इतनी रिक्वायर्ड अमाउंट में इंसुलिन ना बना सके या बिल्कुल ही इंसुलिन ना बना सके तो हमें एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ती है। अब चूंकि हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है तो इतनी बड़ी मिकदार में नेचुरल तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस करना ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी। तो अगर हम इसको बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस कर ले जाएं तो ये कम वक्त में हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन दे सकता है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट इंसर्ट द ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरियल जीनोम। अब साइंटिस्ट ह्यूमन से इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन लेके उसे बैक्टीरिया के जीनोम में, बैक्टीरिया के डीएनए में दाखिल करते हैं, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया का डीएनए जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है और फिर उस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है इन द लेबोरेटरी। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता चला जाता है इंसुलिन की अमाउंट भी बढ़ती चली जाती है, जिसे बाद में हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक डायग्राम की मदद से देखते हैं और इससे पहले हम समराइज कर लेते हैं सारे प्रोसेस को। 4 स्टेप्स हैं एक्चुअली। सबसे पहले रिमूव अ प्लाज्मिड, यह प्लाज्मिड बैक्टीरिया से आएगा। फिर कट ओपन विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब प्लाज्मिड का एक स्पेसिफिक पार्ट हम कट कर देंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से ताकि उसमें अपनी डिजायर्ड जीन, इंसुलिन जीन ऐड कर सकें। फिर लोकेट एंड रिमूव ह्यूमन इंसुलिन जीन यूजिंग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्लाज्मिड को प्रिपेयर करने के बाद हम ह्यूमन जीनोम से, ह्यूमन डीएनए से इंसुलिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये काम भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से किया जाएगा। और फिर उस ह्यूमन जीन को कंबाइन कर दिया जाएगा बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ। द डीएनए इज कंबाइंड विद प्लाज्मिड यूजिंग लाइगेज एंजाइम, और ये काम लाइगेज एंजाइम की मदद से किया जाएगा। लाइगेज एंजाइम आपने डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड्स को या डीएनए के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। अब हम देखते हैं इस डायग्राम की मदद से कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो सबसे पहले
ह्यूमन पेंक्रियास सेल हासिल किया जाता है ह्यूमंस के डीएनए से। वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये वो जीन थी जो एक्सट्रैक्ट की गई। इसके साथ ही दूसरे स्टेप में, पैरेलल स्टेप में, ये दोनों स्टेप्स पैरेलल चलेंगे। प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया का अब डीएनए हासिल किया जाता है प्लाज्मिड की सूरत में। प्लाज्मिड का वो स्पेसिफिक पोर्शन कट कर दिया जाता है जहाँ हमने वो जीन, ह्यूमन जीन इंसर्ट करनी है। फिर उसको रिकम्बिनेट बनाया जाता है, यानी बैक्टीरियल प्लाज्मिड में ह्यूमन जीन इंसर्ट की जाती है और इस नए बनने वाले डीएनए को कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस बैक्टीरिया के सेल में इंड्यूस कर दिया जाएगा, तो ये बैक्टीरिया भी रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा। फिर उसको लेबॉर्ट्री में ग्रो करवाया जाएगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगा, जैसे आप जानते हैं कि बैक्टीरिया की सेल डिवीजन बहुत रैपिड होती है। 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया 1 से 2 में चेंज हो जाता है, तो साथ ही साथ इंसुलिन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती चली जाएगी। उस इंसुलिन को फिर बाद में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास इंसुलिन एक प्योर फॉर्म में आ जाएगी जिसे इंसानों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे साबित होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन यानी एक हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी बायोटेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है और बहुत इफ़ेक्टिवली पॉसिबल है। अब आते हैं एक दूसरे अपनी फील्ड में, यानी फार्मास्यूटिकल फील्ड में, वैक्सीन की तरफ। वैक्सीन बीमारियों की रोकथाम में वैक्सीन ने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। अगर वैक्सीन्स इन्वेंट ना की जाती तो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त ख़त्म हो चुकी होती। ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज़। इसमें वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं? वैक्सीन्स इस तरह से काम करती हैं कि बीमारी के इंड्यूस होने से पहले हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर देती हैं उस बीमारी के अगेंस्ट। अब होता क्या है कि वैक्सीन्स किसी भी जिस बीमारी के बारे में, जिस डिज़ीज़ की ये वैक्सीन होगी, उस डिज़ीज़ कॉजिंग वायरस का कोई पार्ट, वो वायरस खुद इनएक्टिव किया हुआ वायरस या उस वायरस की कोई प्रोटीन, उस वायरस का कोई डीएनए, उस वायरस के उसकी बॉडी से कोई केमिकल लेके ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। अब ह्यूमन बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही ह्यूमन बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, हमारी बॉडी उस फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है इन ह्यूमन बॉडी का। तो जब इनएक्टिव किए हुए माइक्रोब्स या उनके टॉक्सिन्स या दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन्स जब बॉडी में ऐड की जाती हैं तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अब जब एक दफ़ा हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाएंगी, तो जब कोई एक्चुअल में वायरस हमारी बॉडी में शामिल होगा तो वो एंटीबॉडीज़ तो पहले से ही मौजूद हैं, तो फ़ौरन से वो नए आने वाले ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब को किल कर देंगी। इस तरह हमारी बॉडी महफूज रहेगी वायरस के अटैक से, उस स्पेसिफिक डिजीज़ के। अब इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अ वैक्सीन कैरीज वीकेंड माइक्रोब्स, देयर टॉक्सिन्स और देयर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड agents. The agent encourages the immune system of a body to identify a pathogen as a threat. हम पहले से ही एक्चुअल डिजीज़ के कॉज होने से पहले ही वो एजेंट बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं। When the threat is identified by the body develops antibodies against it which reside in the body. अब एक दफ़ा बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगी तो वो बॉडी में हमेशा के लिए कायम रहेंगी। When a real pathogen enters, these antibodies kill it at once and protect the body from its hazard. सेम ऐसा ही पोलियो के केस में होता है कि 5 साल तक बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है ताकि बच्चों की बॉडी में पोलियो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप की जाएं। इसके बाद अगर बॉडी में कोई पोलियो वायरस एंटर भी होता है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, वो बॉडी को कोई हैज़र्ड नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। These antibodies kill it at once and protect the body from its hazards. Scientists identify genes in bacteria that make such proteins that do not cause disease but can stimulate blood cells to make antibodies against that disease. Scientists क्या करते हैं कि बैक्टीरिया में ऐसी जीन्स आइडेंटिफाई करते हैं जो कि खुद तो डिजीज़ कॉज नहीं करती हैं, लेकिन हमारे बॉडी सेल्स को स्टिमुलेट कर देती हैं डिजीज़ कॉज करने वाले एजेंट्स के अगेंस्ट। तो ऐसी जीन्स जब इंसर्ट की जाती हैं दूसरे बैक्टीरिया में तो वो बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहलाता है। द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्रिपेयर द पैथोजन प्रोटीन्स विच इज़ देन एक्सट्रैक्टेड एंड इज़ यूज्ड एज वैक्सीन। इस तरीके से हम वैक्सीन डेवलप करते हैं। वैक्सीन इज़ द बेस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज सच एज इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स।
इन्फ्लुएंज़ा एक फ्लू की एक टाइप है, चिकन पॉक्स एक बहुत पुरानी डिजीज़ है जो बच्चों में डेथ कॉज करती थी, लेकिन अब उसकी वैक्सीन की बदौलत ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रही। इसका प्रोसेस ये देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी की वायरस की वैक्सीन हमें तैयार करनी है, तो पहले हेपेटाइटिस बी का डीएनए या उसका कोई सेगमेंट, उससे रिलेटेड जीन हासिल की जाएगी। उस जीन को फिर बैक्टीरिया से हासिल होने वाले प्लाज्मिड्स में इंसर्ट किया जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाएगा। उस रिकम्बिनेंट डीएनए को दोबारा किसी और ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और फिर उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया जाएगा। उसकी जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो करता चला जाएगा, हमारी वैक्सीन भी प्रिपेयर होती चली जाएगी। उस वैक्सीन को हम बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू और हमारी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इस वैक्सीन को हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और ह्यूमन बॉडी को इस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट स्ट्रेंथन बना देंगे। ये तो थी वो कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इनके बनाने का तरीका भी आपने देख लिया। अब हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के पर्पस की तरफ कि बायोटेक्नोलॉजी फूड में क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो इस फूड इंडस्ट्री में यूज़ करने का एक बेसिक पर्पस तो ये है कि हम इससे अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकें, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस कर सकें। न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस करने का मतलब ये है कि हम किसी डिज़ायर्ड फूड से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें, कोई पर्टिकुलर विटामिन हासिल कर सकें या कोई फैटी एसिड का कोई कंटेंट हासिल कर सकें या कोई विटामिन्स, कोई मिनरल्स, कोई कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ कर सकें ताकि हमें वो पर्टिकुलर अमाउंट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में मिल सके और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक से पेज 37 और 38 ओपन करेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा 3.7। ये हमारे दूसरे SLO की डिमांड को फुलफिल करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने का एक पर्पस ये है कि इनसे इम्प्रूव न्यूट्रिशन हासिल की जाए, इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट पहले से बेहतर बनाया जाए। We have studied in previous topics about the transfer of genetic material in bacteria, just as recombinant bacteria. This exchange is possible in viruses, plants and animals as well as to produce better products than the original ones. This genetic transfer not only modifies the previous product but also allows the transfer of desired character in new products. यानी हम बहुत से new features भी add कर सकते हैं। The modifications in plants and animals ultimately lead to genetically modified organisms. ऐसे animals या ऐसे plants या ऐसे viruses या bacteria जिनका genetic makeup change कर दिया गया हो, इन्हें genetically modified organisms या GMOs कहा जाता है। These organisms, especially crops, are resistant toward other harmful disease causing organisms. यानी एक पर्पस तो ये है इनका कि हम उनसे ऐसी क्रॉप्स बना लें जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। यानी आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सा क्रॉप, हमारे बहुत सा फूड सिर्फ इसलिए ज़ाया हो जाता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ही कोई पैथोजन उन पे अटैक करता है, हमारे वो पर्टिकुलर क्रॉप उसे रेजिस्ट नहीं कर पाती, लिहाजा वो तमाम की तमाम फसल ख़राब हो जाती है। लिहाजा ऐसी फसलें प्रोड्यूस की जा रही हैं जो कि पैथोजन्स के अटैक को ना सिर्फ रोक सकें बल्कि उनके लिए इनएक्टिव भी हो सकें। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अटैक करें तो उन पे ऐसी फसलों पे कोई असर ना हो। Such crops are least likely to be affected by any disease. If a gene is selected for the modification in a food crop, it may increase or decrease the contents of essential nutrients. लेकिन ऐसा करने का एक खतरा ये भी हो सकता है कि अगर हम एक कंटेंट इंक्रीज़ करते हैं तो हो सकता है कि कोई दूसरा कंटेंट हम डिक्रीज़ कर रहे हों। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी फसल को पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाए, या अगर हम बड़े साइज़ का फ्रूट या बड़े साइज़ की क्रॉप हासिल करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि हम साइज़ तो अटेन कर लें लेकिन उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाए। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई हैं। प्लांट्स आर मॉडिफाइड जेनेटिकली टू ऑब्टेन हाई यील्ड एंड बेटर क्वालिटी। दो पर्पस सर्व होते हैं, एक तो उसकी यील्ड ज़्यादा हो जाए पर एकड़ और दूसरा उसकी क्वालिटी बेटर हो जाए। क्वालिटी बेटर होने का क्या मतलब है कि उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट इंक्रीज़ कर जाए। Let's have an example of golden rice. This is genetically modified to increase the content of beta carotene. Beta carotene vitamin A को produce करने का एक source है. This is one case. Another possibility is that the increase in one nutrient may decrease the amount of other nutrient. When canola oil is genetically modified to increase the vitamin A content,
दिस रिड्यूसेस द विटामिन ई कंटेंट इन न्यू प्रोडक्ट। देखा, वही बात सामने आ गई कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम एक कंटेंट को, एक न्यूट्रिएंट को इंक्रीज़ करें तो हो सकता है कि दूसरा न्यूट्रिएंट, कोई भी दूसरा न्यूट्रिएंट रिड्यूस हो जाए। सो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हुए हम कोई कंटेंट रिड्यूस ना कर सकें। ऐसा ना हो कि हम एक कंटेंट को तो इंक्रीज़ करें लेकिन बहुत से दूसरे कंटेंट्स रिड्यूस हो जाएं। अब हम आते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन एनिमल्स में। The genetic modifications are not only limited to plant products, the field of animal husbandry is developed by GMOs as well. यानी animals में भी बहुत सी genetic modifications की गई हैं. Scientists have modified the fatty acid content in animals. The content of certain fatty acids, for example omega-3, is a very powerful energy given fatty acid. Is also regulated in eggs. Various grains are often genetically modified with iron and vitamin contents. बहुत से ग्रेन्स में आयरन कंटेंट और विटामिन कंटेंट इंक्रीज़ किया गया है। जब हम फ़िश फार्मिंग की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सी फ़िश की स्पीशीज़ प्रोड्यूस की गई हैं जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। इनमें बहुत से एंजाइम्स को इन्हेंस किया गया है, जैसे कि सैल्मोनिड्स और टिलापियस आर फैमिलीज ऑफ फिश दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड. There are some enzymes producing plant genes that are able enough to degrade the antibiotics. These enzymes indirectly reach in animal and make them resistant to antibiotics. क्या होता है कि ये फ़िश जब कुछ ऐसे प्लांट्स खाती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर सकते हैं, तो उन प्लांट्स को फ़िश खा के अपनी बॉडी में भी ये फीचर इंड्यूस कर लेती हैं. यानी हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर सकते हैं. फ़िश जब ये प्लांट्स खाएंगी तो इनके अंदर भी ये क्वालिटी पैदा हो जाएगी कि वो एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर सकें, और फिर जब ह्यूमंस ये फ़िश खाएंगे तो उनके अंदर भी अल्टीमेटली ये क्वालिटी आ जाएगी, या उनके जेनेटिक मेकअप में भी ये चेंज आ जाएगा कि वो एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर सकें. दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन विद इन ऑर्गेनिजम्स. अब आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ. होमवर्क आप करेंगे अपना टेस्ट एक्सरसाइज 2 से सबसे पहले, और ये आपको पेज 41 और इसका रिमेनिंग पार्ट पेज 42 पर मिलेगा. फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और 4 ऑप्शन हैं. आपने स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उन ऑप्शंस पे गौर करना है और सही जवाब का इंतखाब करना है. फर्स्ट नंबर MCQ नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे. फॉलोइंग इज अ थेराप्यूटिक प्रोडक्ट. आपने 4 प्रोडक्ट्स में से थेराप्यूटिक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है. क्या ये एंटीबॉडीज़ हैं, इंटरफेरॉन्स हैं, इंसुलिन है या एंटीबायोटिक्स हैं. राइट आंसर का सर्कल फिल करेंगे. अब नंबर 2 MCQ भी सॉल्व करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन हैज़ अ फ्लॉ. अब आपने वो फ्लॉ फाइंड आउट करना है जो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमें फूड प्रोडक्शन में मिलता है. 4 ऑप्शन गौर से पढ़ें और सही जवाब का इंतखाब करें. अब आ जाए अपने पेज 42 पे और पार्ट बी की तरफ देखिए. इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. आपने क्वेश्चन का ब्रीफली आंसर करना है. नंबर 1 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है वो आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है. फिर नंबर 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. नेम 2 डिजीजेज एंड देयर वैक्सीन्स. कोई से भी 2 डिजीजेज जिन्हें वैक्सीन्स के थ्रू क्योर किया जाता है आपने वो बतानी है. फिर डोमेस्टिकली यूज़ होने वाली बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपने बतानी है क्वेश्चन नंबर 4 में, जिन्हें हम घरों में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं. बहुत सी अभी आपने एक लंबी लिस्ट देखी है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की. उनमें से ऐसी 2 प्रोडक्ट्स आपने लिखनी है जिनसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं. अब आ जाएं अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जो कि पेज 42 पे है. इसमें से अब पहला सवाल वही है, MCQ बेस्ड है ये. यानी आपने एक स्टेटमेंट को पढ़कर 4 ऑप्शंस में से सही जवाब का इंतखाब करना है. यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे जो कि है गोल्डन राइस क्या है. जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं, ट्रांसफॉर्म क्रॉप्स हैं, टिश्यू कल्चर्ड क्रॉप्स हैं या रिकम्बिनेंट क्रॉप्स हैं. सही जवाब का इंतखाब करेंगे आप. अब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सही जवाब का इंतखाब करेंगे. एडिंग और रिमूविंग द जीन्स कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, कि इसमें जीन्स को ऐड किया जाता है या किसी जीन को निकाल लिया जाता है. स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन. अगर बॉडी में कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन हो जाए तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, या फिर जीन की स्टडी ही जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या फिर एडिंग द प्लाज्मिड वेक्टर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है. तो जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की सही डेफिनेशन है आप उसको मार्क करेंगे. द मोस्ट कॉमनली यूज बायोटेक्नोलॉजिकल लिविंग टूल इन लेबॉरेटरीज इज़. लेबॉरेटरी में बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी के लिए किस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो आपने बताना है. क्या वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, एल्गी है या फिर फंजाई है. नेक्स्ट पेज पे आइए.
इसमें पार्ट बी देखिए, पार्ट बी है आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली। आपने क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी सर्व इन हेल्थ केयर। आपने बहुत सी प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं, उन प्रोडक्ट्स की मदद से आपने अपने आंसर को फॉर्मुलेट करना है कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में कैसे फैसिलिटेट करती है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, हाउ डज वैक्सीन वर्क, के वैक्सीन काम कैसे करती है। फिर आप आ जाइए पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में से जो कि इन डिटेल आंसरिंग रिक्वायर्ड है, इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, लिस्ट सम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है आपने डिफरेंट फील्ड्स में। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन द जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट फूड्स कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने में या उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ करने में बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्या रोल है वो आपने बताना है। ये सब सॉल्व करने के बाद आप अपने समर पैक में आए। समर पैक में पेज 33 ओपन करें। यहाँ आप एक्टिविटी 3.4 सॉल्व करेंगे और इससे पहले आप इन SLO का पर्पस भी स्टडी करेंगे। आपको 3 फील्ड्स दी गई हैं, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। इन 3 फील्ड्स में इस्तेमाल होने वाली बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में से कोई से भी 3 लिखनी है। एनालाइज क्रिटिकली एंड डिस्क्राइब व्हाट एडवांटेज दीज हैव ओवर नॉन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। आपने 2 काम करने हैं इसमें। एक तो हर सेक्शन में यानी मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, हर सेक्शन में 3-3 बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लिखनी है, इधर 1, 2 और 3। और हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपने ये बताना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट नॉन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है। आखिर कोई तो बेहतरी होगी, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से इन्हें बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस किया गया है, तो इनका क्या कंपैरिजन करना है आपने नॉन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ। उसके बाद आप आइए अपने SLO बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। इसमें से क्वेश्चन डी सॉल्व करेंगे आप पेज 37 पे। हाउ आर वैक्सीन्स बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कि वैक्सीन्स बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैसे हैं। आपने ब्रीफली स्टेप वाइज प्रोसीजर बताना है कि ये किस तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन बी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। What are some popular features in plant as well as in animals that are modified through biotechnology? हम plants और animals में किन features को enhance करते हैं या उसको reduce करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकली, वो आपने बताना है। Thank you very much.